Good afternoon, everyone. Okay, everyone. So today we are going to start our discussion on losses in concrete. Basically, losses in concrete happens in different manner in pre-tension concrete as well as post-tension concrete. But in the essence, if you want to discuss theoretically, these are different properties of concrete. Okay, so different properties of concrete, different properties of steel, how they behave under the stress load condition gives us different result. So we'll discuss one of the properties one after another for pre-tension and post-tension, but we would just like to list out all the different losses, because some of the time in examination there can be a theoretical question that can be asked, that write a short note on losses on pre-stress or enlist the losses of pre-stress. Okay, so pre-stress losses are totally of 6 types. Okay, so the first loss is okay. So the first loss is loss due to elastic deformation of concrete. Second loss is loss due to shrinkage in concrete. Third one is loss due to creep in concrete. Fourth is due to creep in steel. Then there are two more losses, fifth and sixth. But the difference between these first four losses and the next two losses is that the first four losses occur compulsorily in pre-tensioned concrete. अगर pre-tensioned concrete है तो उसमें ऊपर के 4 losses होंगे ही होंगे. Okay, we'll discuss all the different losses in detail, that what are those losses and how to calculate those losses. We'll discuss that in detail. But the fifth and the sixth loss due to friction anchorage slip. These happen exclusively in post tension concrete. जो पोस्ट टेंशन कंक्रीट रहेगा उसके अंदर ये दो लॉसेस जो हैं ये एक्सक्लूसिव है. और ये जो पहले वाले जो 4 लॉसेस मैंने आपको बताए, ये 4 लॉसेस
pre-tension as well as पोस्ट टेंशन दोनों के अंदर कॉमन है. सो प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन दोनों के अंदर ये 4 लॉसेस कॉमन है. एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ लॉस जो है, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप, ये वाले दोनों लॉसेस जो हैं ये सिर्फ पोस्ट टेंशन में होते हैं, प्री टेंशन के अंदर नहीं होते. क्यों ऐसा होता है, किस लिए होता है, ये हम लोग हर एक के कंसेप्ट के अंदर जाके डिस्कस करेंगे. ऑल्सो दिस फर्स्ट लॉस इज स्पेशल. ये जो फर्स्ट लॉस है, लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट, ये प्री टेंशन में तो कंपल्सरीली होगा, प्री टेंशन के अंदर ये वाला लॉस होगा. बट पोस्ट टेंशन के अंदर ये वाला लॉस डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पोस्ट टेंशनिंग करते हैं. सो आप जिस स्टाइल से पोस्ट टेंशनिंग करेंगे, सारे टेंडन को एक साथ में स्ट्रेच करेंगे या सिर्फ एक के बाद एक टेंडन को कंसेक्यूटिवली स्ट्रेच करेंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट द लॉस कैन वैरी. Okay, there can be zero loss also. There can be zero loss also in post tension because of the elastic deformation of concrete. Okay. Now try to understand about losses. These losses are happening because of the different properties of concrete and steel. These losses are happening due to different properties of concrete and steel. But the loss is actually happening in the stresses in steel. स्टील के अंदर जो प्री स्ट्रेस हमने डाला है, स्टील के अंदर प्री स्ट्रेस बोले तो क्या, स्टील की कैपेसिटी थी 2000, हमारा आईएस कोड बोला कि 0.8 के हिसाब से 1600 तक उस पर डाल सकते हैं. हमने 1600 एमपीए तक उसको स्ट्रेच किया. अब ये जो 1600 एमपीए तक स्ट्रेच करने की वजह से जो स्ट्रेस आया, तो उस पर्टिकुलर केबल के अंदर कुछ स्ट्रेन भी है. एक पर्टिकुलर स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन है, यंग्स मॉड्यूलस. So because of that stress, there is some strain also. There is some elongation in that particular wire which is causing that particular amount of stress. अब जैसे जैसे हमारी अलग अलग प्रॉपर्टी की वजह से कंक्रीट के अंदर डिफॉर्मेशन होता है या स्टील के अंदर कोई डिफॉर्मेशन होता है या स्टील के अंदर फटीग आता है, तो फिर उस हिसाब से हमारे स्टील के वायर के अंदर के स्ट्रेसेस के अंदर लॉस होता है. दैट मीन्स 1600 एमपीए की जगह पे ये लॉस कटने के बाद में 1200, 1300, 1350 जो भी अमाउंट बच जाएगा, ये जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज अवर लॉस. सो लॉस इज ऑलवेज हैपनिंग इन द स्ट्रेस इन स्टील, but it happens because of the properties of concrete as well as steel. Okay, material properties of concrete as well as steel. Are you getting it? Is this clear up to this point? So let us start discussing different losses. Loss due to elastic deformation of concrete. Okay, this is a very simple concept to understand. Suppose this is your beam. Okay, in this particular beam, this is your tendon. Okay, this is your neutral axis. Okay, and suppose that this is a pre-tension system. This is a pre-tension system. Now what has happened is, first we have laid down the cable. We have anchored the cable on both the sides using some arrangement, okay, of jacks, and there is some stress in this cable. ये cable के अंदर कुछ तो stress है, ठीक है. Suppose ये जो stress है यहाँ पे, ये stress इस cable के अंदर 1600 MPa का stress है, ठीक है. एक example हम लोग ले लेते हैं just for the sake of understanding. Suppose इसमें कुछ stress है जो कि 1600 MPa है, ठीक है. ये stress लाने के लिए इस केबल को stretch किया गया, खींचा गया. So suppose वो जो खींचा गया, इस केबल को जो stretch किया गया, वो stretching के कुछ हम लोग elongation के एक certain value ले लेते हैं कि suppose that certain value is 100 mm.
ये वायर का जो भी ओरिजिनल लेंथ था वो ओरिजिनल लेंथ के मुकाबले 100 mm का इलोंगेशन इसमें किया गया टू गेट अ स्ट्रेन ऑफ 1600 MPa. Suppose, for example, now what happens is that after casting this particular block of concrete and letting it cure for a certain amount of time, and after 28 days when it has reached its uh, desired strength, then what we are going to do? We are going to cut this particular cables. Okay, as soon as we cut the cables, what will happen? What will the concrete feel? कंक्रीट को क्या फील होएगा? अभी तक तो कंक्रीट पे कुछ भी लोड नहीं था, कंक्रीट ऐसे ही जमीन पे रखा हुआ था और उसको खाली बस खुद का वजन, वो भी कैसे फील हो रहा होगा? तो फ्लैट है, पूरा जमीन के ऊपर सोया हुआ है, तो कंक्रीट को कुछ भी नहीं फील हो रहा था, कोई भी तरीके के स्ट्रेस में कंक्रीट नहीं था. अचानक 28 डेज हुए, क्यूरिंग हुआ, कंक्रीट हार्ड हो गया पूरा, और देन अचानक से हम लोग ये केबल को कट करते हैं. सो व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम व्हेन वी सडनली कट द केबल? When we suddenly cut the cable will apply a force, a pre-stressing force of P on both the sides. And because of the application of this force, what will happen is the concrete will deform. The concrete will deform and the concrete will deform to certain length. ये समझो डेल्टा वैल्यू है, दिस इज द डिफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस. P बाय ए का जो स्ट्रेस है ना, जो लोड, डायरेक्ट लोड जो एक्ट कर रहा है, वो डायरेक्ट लोड की वजह से कंक्रीट के अंदर भी सर्टेन इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है. कंक्रीट कंप्लीटली प्लास्टिक या कंप्लीटली अमॉर्फस मटेरियल नहीं है, एक सर्टेन रेंज तक उसमें इलास्टिसिटी है. अगर उसको दबाया जाए तो उसको कंप्रेस किया जा सकता है, उसके शेप में, उसके वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं. ठीक है, सो कंसिडरिंग दैट इनटू द पिक्चर, यहाँ पे जो आपका लेंथ है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, आपका जो टोटल लेंथ है, सपोज दैट इज कैपिटल एल, ओके, एंड स्मॉल एल इज द न्यू लेंथ. तो क्या हुआ यहाँ पे एक डेल्टा आया. डेल्टा का वैल्यू सपोज मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि 10 mm. 10 mm कॉन्क्रीट जो है वो डिफॉर्म हो गया. टोटल जो है वो 10 मीटर का बीम था, 10 मीटर का बीम था. 10 मीटर की बीम में हमने केबल डाला था, इलोंगेट किया था, 1600 MPa का स्ट्रेस लेके आए थे, 100 mm का हमने इलोंगेशन करके उसके अंदर ये अचीव किया था. अब जब अचीव कर लिया, सब स्ट्रेन गेजेस वगैरह पे हमारा वैल्यू आ गया, अब तो केबल कट करना पड़ेगा ना. सो एट द टाइम ऑफ कटिंग द केबल, द स्ट्रेन वाज 100 mm and the stress was 1600 MPa. But what happened that as soon as you cut that cable, the complete pre-stressing force is applied on that particular beam or on that particular concrete structure. And as soon as that is applied, the original length or original elongation does not remain as it is, because the structure has shrunk a little bit. That shrinkage or that deformation in concrete is happening because of the elasticity of concrete. However, or whatever is the elasticity of the concrete, that much deformation will happen in concrete. That deformation will lead to some relaxation of the wire. अभी वायर स्ट्रेन था, वायर के अंदर स्ट्रेस था 1600 MPa का, थोड़ा सा उसका कंक्रीट का जो टोटल लेंथ है वो 10 mm से कम हो गया. तो अब मेरा इलोंगेशन कितना रह गया? 90 mm. और 90 mm, obviously the stress value will not be 1600, because for 100 mm it was 1600. So what will be some new value? Suppose एक 10% का लॉस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, तो 1440 MPa, 160 MPa का हमें लॉस हो गया. क्यों लॉस हो गया? क्योंकि कंक्रीट के ऊपर जैसे ही अचानक प्री स्ट्रेसिंग का लोड आया, कंक्रीट डिफॉर्म हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Okay, so moving ahead, this was an example we were trying to understand for pre-tension part. Now for post-tensioning, suppose for post-tensioning what will happen? Try to understand. Over here, let us say that we have a beam. Okay, it can be beam, it can be slab, it can be anything. So suppose we have a beam, this is your neutral axis, okay, and suppose there is a cable. Okay, so let us show the first cable like this. Okay,
So for post tensioning what will happen, obviously there is going to be a duct. Obviously वहाँ पे कंक्रीट का ऑलरेडी कास्ट किया गया रहेगा, आपका ब्लॉक कास्ट रहेगा, ठीक है, उसके अंदर होल प्रोवाइडेड रहेंगे। एक साइड के ऊपर हम लोग बोलते हैं कि हमने यहाँ पे एंकर किया, वन साइड पे एंकर कर दिया है, ठीक है, क्योंकि केबल कभी भी कट करेंगे तो दोनों एंड एक साथ में तो नहीं काटते पोस्ट टेंशन के अंदर। सो पोस्ट टेंशन में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि चाहे हमने दोनों साइड से स्ट्रेच किया रहेगा, दोनों साइड पे भी हमने जैकिंग लगाई रहेगी, लेकिन एक साइड पे फिर हम लोग उसको एंकर करते हैं, बंद कर देते हैं, ये साइड से पैक हो जाता है, एंड सेकेंड साइड से हम लोग एक जगह पे जैक लगाए, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, what will happen, hello, yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am, hello, 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 हेलो। yes ma'am, yes ma'am, बोलिए ना, हाँ मैम बोलिए। Sorry for the delay. Uh, Actually, the internet in the college is not working, and I have to provide some technical support. Hello, I'm audible? Yes, ma'am. Okay. Okay, Rishabh, present that slide. The meeting is being recorded. Okay, so we were discussing for the post tension part that what happens if the beam is post tension। जैसे प्री टेंशन के अंदर तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, प्री टेंशन के अंदर अचानक से वायर कट होता है, अचानक से कंक्रीट को फील होता है कि मेरे ऊपर लोड आ गया, और कंक्रीट जो है वो इलास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है, और वो डिफॉर्म होने की वजह से जो भी उसमें श्रिंकेज होता है, जो उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक चेंज होता है, जो उसका लेंथ कम होता है, बिकॉज ऑफ दैट जो वायर हमने स्ट्रेच किया है वो वायर में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ जाता है। जैसे ही वायर रिलैक्स होगा तो ऑब्वियसली उसमें जितना स्ट्रेस था वो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस को वो थोड़ा सा लूज कर देगा, जितना रिलैक्स होगा उतना लूज करेगा, पूरा रिलैक्स होगा 100% लूज कर देगा, ठीक है, सिंपल लॉजिक। Similarly over here, try to understand what happens at the time of post tensioning. At the time of post tensioning, suppose this is your beam, okay, and your beam, what is happening is obviously beam तो उसकी जगह से मूव नहीं करेगा, बीम को हमने पकड़ के रखा है, तो बीम जो है ना एकदम
सॉलिड कनेक्शन है, दोनों साइड पे फिक्स सपोर्ट समझ लीजिए, ओके, एकदम सॉलिड सपोर्ट, बिल्कुल वो अपनी जगह से नहीं हिलने वाले। सो फॉर आवर केस स्टडी हम लोग अभी बीम को नहीं हिलाने वाले, चाहे हम कितना भी ट्रिमेंडस लोड क्यों ना लगा दें। सो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, अगर एक केबल है तो ये क्या होगा, पहला केबल है, ठीक है, सपोज दिस इज केबल नंबर 1, पहला केबल है, ये केबल को मैं यहाँ से स्ट्रेच करते जा रहा हूँ। तो स्ट्रेचिंग कैसे होगी, पहले तो जीरो स्ट्रेस होगा, उसके बाद में कुछ एक्स अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होगा और बढ़ते जाएगा, मीन्स मैं धीरे 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 उसको स्ट्रेस देते जाऊंगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसके अंदर लोड आएगा। ऐसा तो नहीं होता ऐसा बटन दबाए सीधा 1600 MPa का स्ट्रेस आ गया अचानक से एकदम, तो ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। और अगर ऐसा हो भी तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इज दैट कि सपोज मैं यहाँ पे भी सेम ही वायर का कंडीशन अज्यूम करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि चलो जीरो से लेके यहाँ तक 1600 MPa तक जाएगा, ये जीरो है, ये Tx है और ये T1 है, तो ये इतने टाइम पीरियड के अंदर जो है ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। सो ग्रेजुअली हम लोग एक वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो कंक्रीट के ऊपर प्री स्ट्रेसिंग का इफेक्ट जो है वो अप्लाई होना चालू हो गया। जैसे ही आपने एक साइड के ऊपर एंकर किया है, जैसे हमने यहाँ पे एंकर किया है, तो एंकर करने के बाद में हम लोग जैसे ही उसके अंदर वायर को खींचेंगे तो खींचने के साथ में आपका कंक्रीट जो है वो अपने आप उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होते ही रहेगा कंटिन्यूअसली। दैट मीन्स कि जब हम यहाँ पे फाइनली हमारे स्ट्रेन के ऊपर रीच करते हैं, जब हमने 100 mm का इसके अंदर जो है इलोंगेशन पैदा कर लिया और हमने 1600 MPa रीच कर लिया, इस टाइम पे हमारा कंक्रीट ऑलरेडी P/A को फील कर रहा है, जो इस वायर की वजह से जो स्ट्रेस इसमें आना चाहिए वो हमारा कंक्रीट फील कर रहा है। अभी तक मैंने केबल को कट किया नहीं है, अभी तक मैंने उसको एंकर भी नहीं किया है, लेकिन मेरा कंक्रीट जो है बिकॉज ऑफ दैट इलास्टिक डिफॉर्मेशन वो ऑलरेडी डिफॉर्म हो चुका है, क्योंकि जो मैं रिएक्शन के फॉर्म में यूज कर रहा हूँ वो मेरा कंक्रीट का बीम ही मेरे लिए रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एक साइड से वायर मेरा टाइड है तो मेरा कंक्रीट का जो बीम है वही मेरे लिए जो है ये एक रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट रिएक्शन क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग के कंक्रीट में ऑलरेडी जो डिफॉर्मेशन होना चाहिए था, जैसे प्री टेंशन के अंदर केबल कटते ही उस पर लोड आया और वो डिफॉर्म हुआ, वो डिफॉर्मेशन पहले से ही कंक्रीट के अंदर हो गया है। दैट मीन्स that when I am going to cut the cable and I am going to put an anchor over here, जैसे अभी मैंने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद में मैंने इधर एक एंकर लगाया और एंकर लगाने के बाद में मैं केबल कट करूंगा, तो केबल कट करने के बाद इसमें पीपी का फोर्स एक्ट नहीं करेगा, पीपी का फोर्स पहले से ही एक्ट कर रहा था, हम इसको जब स्ट्रेच कर रहे थे तभी इस पूरे कंक्रीट ब्लॉक के अंदर जो है वो पीपी का स्ट्रेस एक्ट कर रहा था। सो इस सिचुएशन के अंदर, जो सिचुएशन आपने अभी देखा जिसमें केबल को मैंने स्ट्रेच किया पोस्ट टेंशनिंग के अंदर, ऐसे सिचुएशन के अंदर लॉस इज जीरो, कोई लॉस नहीं होगा, कोई लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा। जिस लॉस की हम लोग अभी बात कर रहे हैं ये वाला लॉस अभी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सो लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन विल नॉट हैपन। बट सपोज एक और सिनेरियो की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। वो सिनेरियो ये है कि हमारे ये कंक्रीट के अंदर एक और केबल है, ठीक है, दो केबल है और ये सेकंड केबल को भी हमने यहाँ पे ऐसा टाई कर दिया है, एक साइड पे एंकर कर दिया है और यहाँ पे हम लोग इसको जैक से खींच रहे हैं एंड ऑल द सेम थिंग्स के जीरो से लेके एक्स से लेके हमारा ग्रेजुअली लोड जो है वो 16 MPa तक का हम लोग स्ट्रेन उसके अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं। टाइम इज इक्वल टू T1 रहेगा। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मैंने पहले केबल को पूरा स्ट्रेच कर चुका हूँ और पहले केबल को मैं टाई कर चुका हूँ। केबल नंबर 1 इज ऑलरेडी एंकर्ड एट बोथ द एंड्स। नाउ आई एम स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ जैकिंग एंड एंकरिंग एंड जैकिंग द सेकंड केबल। सो पहले केबल में ऑलरेडी जो टेंशन था वो प्रोड्यूस हो चुका है, पहले केबल का टेंशन जो है वो पूरा कंक्रीट पे ट्रांसफर हो चुका है। व्हाट विल हैपन नाउ? Now what will happen is that over here this second cable, when I am going to stretch this second cable, because of this second cable there will be deformation, there will be further more deformation in the concrete. Because of the first cable there was also deformation, but at the time of anchoring when we had finally got that amount of stress, उस टाइम पे हमारे कंक्रीट के अंदर पे हमें कोई लॉस नहीं मिला, क्योंकि जब मैंने उसको कट किया और अटैच किया तो मेरे केबल में कोई एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन नहीं आया एंकरिंग के बाद। लेकिन जब मैं सेकंड केबल को स्ट्रेच कर रहा हूँ तो सेकंड केबल को स्ट्रेच करने की वजह से, अगर हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, सो
केबल 1 को जब मैंने स्ट्रेच किया और एंकर किया तो लॉस इन केबल 1 इज इक्वल्स टू 0। बट जब मैं केबल 2 को स्ट्रेच कर रहा हूं तो लॉस इन केबल 1 is MFC. Okay, this is the formula for calculating that. So we'll go to that how that formula comes and all. M is your modular ratio for the materials, concrete and steel. Because try to understand this FC value which you calculate, this is going to be the stress in concrete. Concrete के stress को steel के stress में convert करना है, तो उसके लिए we are multiplying it with the modular ratio. Okay, it is very simple. We'll go into the derivation, but first let us understand the concept of how the loss is happening. So loss in cable 1 is going to be there, MFC, because of the cable 2. Okay, this FC value will be for केबल 2. केबल 2 की वजह से जो FC का वैल्यू आएगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे. एंड लॉस इन केबल 2 इज गोइंग टू बी 0. केबल 2 में कोई लॉस नहीं रहेगा, क्योंकि केबल 2 को जब हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं तब केबल 1 में लॉस हो रहा है, क्योंकि इलास्टिक डिफॉर्मेशन कंक्रीट में हो रहा है. लेकिन सिमिलर टू केबल 1 जब हमने टाई करके कट किया था, सिमिलरली जब केबल 2 को हम लोग एंकर करके कट करेंगे उस टाइम पे केबल 2 में बिकॉज ऑफ द इलास्टिक डिफॉर्मेशन कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि जब केबल 2 अपने मैक्सिमम स्ट्रेस के ऊपर पहुंचता है एट दैट टाइम कंक्रीट ऑलरेडी डिफॉर्म हो चुका है. ओके, सो दिस पर्टिकुलर लॉस दैट इज हैपनिंग, ओके, इसको हम लोग डिफॉर्मेशन के फॉर्म के अंदर स्टडी करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो जितना हमारा स्ट्रेन, दिस इज स्ट्रेन इन योर कंक्रीट is equals to your strain in steel, क्योंकि दोनों एक साथ में टाइड है, तो जितना कंक्रीट के अंदर स्ट्रेन कम होगा या कंक्रीट के अंदर जितना स्ट्रेन का वैल्यू कम होगा उतना ही स्टील के अंदर स्ट्रेन का वैल्यू जो है वो कम होगा. ओके, सो बेसिकली अगर इसको हम लोग अभी मॉड्यूलर रेशियो के अंदर लिखते हैं, ओके, तो हमारा E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय strain. तो strain is equals to stress divided by modulus of elasticity. तो similarly coming over here, हम लोग stress की अगर बात करें तो कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेस का फर्क आएगा, कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेस का फर्क आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ द प्री स्ट्रेस, एक्सटर्नल लोड्स तो अभी पिक्चर में आए ही नहीं है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल लोड तो हम लोग अभी बात कर ही नहीं सकते. अभी बिकॉज ऑफ ओनली प्री स्ट्रेस यहाँ पे हमारे जो है इसके अंदर कंक्रीट के अंदर डिफॉर्मेशन और लॉस की बात हो रही है. एकदम इनिशियल स्टेज के अंदर, एकदम स्टार्टिंग के अंदर ये वाला लॉस हो जाता है. सो एक्सटर्नल लोड जो है यहाँ पे पिक्चर के अंदर नहीं आते. ओके, सो FC डिवाइडेड बाय योर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील ES डिवाइडेड बाय corresponding लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील. मैं लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील की बात क्यों कर रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए. लॉस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रेन का वैल्यू लिया है कंक्रीट का, दिस इज द डिफॉर्मेशन. टोटल लेंथ के अंदर से कितना कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेन का वैल्यू कम हो गया, इलास्टिक स्ट्रेन की वजह से जितना स्ट्रेन का वैल्यू कम हो गया, हम सिर्फ उस डिफरेंस की बात कर रहे हैं. हम टोटल स्ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ डिफरेंस की बात कर रहे हैं. दैट्स व्हाई यहाँ पे corresponding to that जो stress रहेगा स्टील के अंदर, that is the loss of stress in steel divided by ES. So rearranging the terms, we can get loss on one side loss of stress in steel due to elastic deformation of concrete is equals to your ES by EC multiplied by FC. FC is the amount of stress loss in concrete, okay, because of the pre-stress.
So that if you ES by EC को अगर हम बोलेंगे तो that is M, our modular ratio ES by EC into FC. Okay, now for FC, how much we have to consider, that we need to understand. That is going to be your P by A, okay, plus PE by Z. Only this much amount of stress we are going to consider for calculation of value of FC. Okay, using that we'll get this value. Okay, so this is about that. अभी जब मैंने प्री टेंशन की बात किया तो प्री टेंशन में चाहे एक केबल हो, दो केबल हो या 10 केबल हो, FC के लिए जो आप P का वैल्यू लोगे, that P का वैल्यू is going to be for all the cables combined together. So eccentricity also you have to calculate the what we can say the equivalent eccentricity, at which point you consider that the complete effect of all the cables is going to act. But if you are going to consider it for the post tension part, then for post tension part you need to understand that M तो ठीक है वही रहेगा, लेकिन जो FC का वैल्यू है वो डिपेंड करता है. जैसे बिकॉज ऑफ द केबल 2 केबल 1 में हो रहा है, सो केबल 2 की वजह से P2 का वैल्यू लेंगे, बिकॉज द एक्टिव लोड विच इज एक्टिंग इज P2. एरिया तो क्रॉस सेक्शन का सेम रहेगा, प्लस P2 रहेगा, इसेंट्रिसिटी 1 रहेगी. ठीक है, और इसेंट्रिसिटी भी जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द इफेक्ट ऑफ P2 ऑन द फर्स्ट केबल. तो पहले P2 की वजह से P1 के लेवल के ऊपर क्या होने वाला है, दैट वे वी नीड टू कैलकुलेट. ओके, सो बाय सॉल्विंग अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग यू विल अंडरस्टैंड इन डेप्थ दैट हाउ टू कंसिडर. दिस इज अ वेरी basic scenario what can happen. Okay, now maximum possible the number of cable you can have in a problem at your particular level of this final year is maximum number of 3 cables. So we'll have a problem with 3 number of cables and then we'll try to solve it. Okay, so what you need to remember is this M into FC, the formula for finding out the pre-stressing effect, and also you need to understand the value of FC. Now there is one more thing, this value of FC that we try to determine. आप पहले देखते होंगे कि हम लोग जो है यहाँ पे प्री स्ट्रेसिंग के अंदर प्लस माइनस का वैल्यू यूज करते हैं. अभी हम लोग प्लस माइनस का वैल्यू नहीं यूज कर रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस टाइम पे हम लोग जो वैल्यू डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं FC का, दिस इज एट द लेवल ऑफ स्टील in the section. In the section, we are not trying to determine at the top level or at the bottom level. We are trying to determine the amount of stress at the level of steel. At the level of steel, what is the amount of stress? Okay, what is the amount of stress in that particular concrete? जितना स्ट्रेस रहेगा उस कंक्रीट के अंदर, उतना ही वहाँ के ऊपर जो है वो स्ट्रेन का इलास्टिक स्ट्रेन रहेगा. उतना इलास्टिक स्ट्रेन की वजह से वहाँ पे उतना लॉस होगा. ओके, सो this is regarding the elastic deformation. So elastic deformation happens differently for pre-tension and for post-tension. Pre-tension के अंदर 100% श्योर ये चीज अप्लाई होने वाली है. MFC आपको कैलकुलेट करना है and accordingly you are going to get the value of your loss. But post-tension के अंदर it depends on the situation. Okay, what is this situation? First situation is whether there are multiple cables or not. If there are multiple cables, if they are simultaneously stretched and anchored, then there is going to be no loss. But if they are consecutively, that means one after the other, if they are stretched one after the other, okay, then there is going to be loss. Okay, loss in previous cables due to लेटेस्ट केबल. जो भी आपका लेटेस्ट केबल रहेगा उसकी वजह से प्रीवियस केबल्स के अंदर लॉस होगा. लेकिन एक बात यह है कि जो सबसे लास्ट केबल को आप एंकर और टाई करेंगे, वो सबसे लास्ट वाला केबल जिसको आप स्ट्रेच और एंकर करेंगे, वो लास्ट वाले केबल में कोई लॉस नहीं होगा. लेकिन उसके पहले के हर केबल के अंदर
बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट केबल लॉस होगा. दैट मीन्स अगर एक हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि एक ही लेवल पे सारे के सारे फोर्सेस हैं, ठीक है, केबल, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि केबल 1, केबल 2, केबल 3, केबल 4. ओके, और यहाँ पे हम लोग लॉस की बात करते हैं. ओके, सो केबल 1 की स्ट्रेच करने से केबल 1 के अंदर कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है. केबल 2 के स्ट्रेच करने से केबल 1 के अंदर MFC का लॉस होगा. केबल ऑब्वियसली केबल 1 के स्ट्रेच करने से केबल 1, 2, 3, 4 किसी में लॉस नहीं होगा. केबल 2 के स्ट्रेच करने से केबल 1 के अंदर MFC का लॉस होगा. बिकॉज और ऑब्वियसली हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सारे केबल सेम लेवल पे हैं, सेम एसेंट्रिसिटी पे है, तो FC का वैल्यू सभी के लिए सेम है. वी आर जस्ट कीपिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस. तो केबल 2 की वजह से केबल 1 के अंदर लॉस होगा, लेकिन केबल 2 में लॉस नहीं होगा, केबल 3 में नहीं होगा, 4 में नहीं होगा. उसके बाद में मैं केबल 3 को स्ट्रेच करता हूँ, तो व्हेन आई स्ट्रेच केबल 3, तो केबल 1 के अंदर MFC का लॉस जो कि केबल 2 की वजह से हुआ था, प्लस MFC का लॉस जो केबल 3 की वजह से होगा. केबल 2 के अंदर पहला लॉस होगा बिकॉज ऑफ द केबल 3. केबल 3 इटसेल्फ में कोई लॉस नहीं होगा. केबल 4 तो अभी तक हमने आया ही नहीं पिक्चर के अंदर, केबल 4 में कोई लॉस नहीं होगा. व्हेन वी गो फॉर केबल 4, जब हम केबल 4th केबल को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो केबल 2 के वजह से लॉस, प्लस केबल 3 के वजह से लॉस, प्लस केबल 4 के वजह से लॉस. मीन्स केबल 1 के अंदर 3 टाइम्स द लॉस इज गोइंग टू हैपन फॉर केबल 2, 3 एंड 4. केबल 2 के अंदर because of the cable 3 and cable 4 the loss is going to happen. In cable 3 only because of the stretching of cable 4 the loss is going to happen, and in the 4th cable there is going to be no loss. Okay, so I hope this is clear to you and you understand that how this particular loss is taken care of. Okay, now let us move ahead to another loss. Okay, loss due to shrinkage of concrete. First loss is clear to everyone? Have you understood it? First loss? Okay. Now, second loss that we are going to see is because of the shrinkage of concrete. Now, shrinkage, why this loss is common in both? Try to understand. Shrinkage in concrete is a very initial property of concrete. Okay. And it is common for both pre-tensioning and post-tensioning. चाहे आप pre-tensioning करो या चाहे आप post-tensioning करो, concrete के अंदर जैसे जैसे उसके अंदर का केमिकल रिएक्शन पानी के साथ में जो होता है, जो आपने सेकेंड ईयर वगैरह में स्टडी किया था, वो जो रिएक्शन जब होता है तो आपका कंक्रीट के अंदर थोड़ा सा वॉल्यूमेट्रिक चेंज आता है, उसके अंदर का पानी इवोपोरेट होता है, उसके वजह से भी श्रिंकेज होता है. सो श्रिंकेज हैपेंस इन कंक्रीट ड्यू टू वेरियस रीजंस. बिकॉज ऑफ द श्रिंकेज, ऑब्वियसली द वर्ड इज श्रिंकेज, श्रिंकिंग, स्मॉल होना, छोटा होना. तो अगर ये एक्सपांशन होता तो हमारे फायदे में होता, क्योंकि वो एक्सपांड हो रहा है तो कंक्रीट के अंदर वो स्टील को और ज्यादा स्ट्रेच करेगा. लेकिन क्योंकि वो श्रिंक हो रहा है तो उसकी वजह से जो हमारा स्टील का वायर है, बेसिकली हम वायर के अंदर जो स्ट्रेस है वो कैसे लेके आते हैं, उसको स्ट्रेच करके. अगर उसको स्ट्रेच करके एंकर किया और बाद में कंक्रीट श्रिंक हो जाता है बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी और बिकॉज ऑफ द श्रिंकेज, जो भी प्रॉपर्टी की वजह से अगर श्रिंक होता है तो क्या होगा, केबल रिलैक्स हो जाएगा. सो इफ दैट रिलैक्सेशन हैपेंस, देन what will happen and what are the factors that affect it? Okay, so shrinkage is due to
gradual loss of moisture which results in change of volume. Shrinkage depends on following factors. You should know that what are the factors that affect the shrinkage, because this is not something shrinkage property which you can uh, associate with this particular type of what we can say concrete. Pre-stress के साथ में ही सिर्फ shrinkage की बात होगी ऐसा नहीं. Shrinkage तो concrete की property है. So आपका pre-stress concrete हो, normal RCC हो या PCC हो, किसी भी इसके अंदर आपको ये श्रिंकेज प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए कि कितना है श्रिंकेज का एंड ऑल दोस थिंग्स. ओके, सो व्हाट आर द फैक्टर्स, कैन यू टेल मी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट? Anyone? What are the factors that affect the shrinkage of concrete? Okay, so the first factor that affects the shrinkage is ratio of surface area to volume of the member. Second is properties of coarse and fine aggregate. Third is water content of mix. Then cement content of mix and okay, so these are the factors that affect the shrinkage of the concrete. First one is the ratio of the surface area to the volume of the member. जो टोटल वॉल्यूम है मेंबर का, उसके कंपैरिजन में उसका सरफेस एरिया कितना है. जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा, उतना ज़्यादा वहाँ से आपको श्रिंकेज होगा. जितना उसका सरफेस एरिया के साथ में वॉल्यूम का रेशियो जो है वो कम होगा, उतना उसका श्रिंकेज का वैल्यू कम होगा. सेकेंड थिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट. कोर्स और फाइन एग्रीगेट आपके किस क्वालिटी के हैं, क्या उनके अंदर मॉइस्चर है, क्या उनमें मॉइस्चर रिटेनमेंट है, क्या वो पानी के साथ में किस तरीके से बिहेव करते हैं. These factors, these properties of coarse and fine aggregate also affect the how much shrinkage is going to happen. अगर आपका वो ऑलरेडी वेट है, ऑलरेडी उसके अंदर मॉइस्चर है, तो फिर वो आपका वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे, आपका पानी ज़्यादा निकलेगा. अगर वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो पानी को रिटेन करेंगे, जिससे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक उसके अंदर कंक्रीट के साथ में, सीमेंट के साथ में उसका रिएक्शन होते रहे. ठीक है. देन देयर इज वाटर कंटेंट ऑफ द मिक्स. टोटल वाटर कंटेंट कितना है मिक्स का, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द श्रिंकेज. सीमेंट कंटेंट ऑफ द मिक्स, जितना ज़्यादा सीमेंट रहेगा उतना ज़्यादा पानी के साथ में वो रिएक्ट करेगा, उतना ज़्यादा पानी को वो अपने अंदर रिएक्शन के अंदर यूज कर लेगा. सो द अमाउंट ऑफ लेफ्ट ओवर वाटर विल बी लेस फॉर श्रिंकेज. ओके. देन देयर इज एम्बिएंट टेम्परेचर, कि उसका उस टाइम पे एम्बिएंट टेम्परेचर क्या रहता है. अगर कोई हॉट जोन है जहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा पानी आपके कंक्रीट के अंदर से जाएगा, तो ज़्यादा पानी कंक्रीट में से जाएगा तो ज़्यादा उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, ज़्यादा श्रिंकेज होगा.
अगर एम्बिएंट टेम्परेचर ठंडा रहता है, कूल रहता है, जहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा नहीं होता है, तो फिर वहाँ पे आपका श्रिंकेज का वैल्यू भी कम रहेगा. So shrinkage depends on so many factors. It is not as simple as just taking a formula and then doing the shrinkage calculation. Obviously, we'll take a formula and do it as per our IS code procedures and the textbook procedures, but it depends on so many factors if you want to accurately pinpoint the amount of shrinkage which is going to happen in concrete. So there are so many factors. Okay. So based on experiments, it is found that for symmetrically reinforced sections, shrinkage strain is equals to ESH divided by 1 plus K delta. Okay. So what do we have for this symmetrically reinforced sections? इसके अंदर जो एप्सिलॉन का वैल्यू है ESH, this is the shrinkage strain of plain concrete. This is plain concrete. Then this delta value is ratio of reinforcement steel. K is the factor or coefficient. Coefficient of exposure, which is equals to 25 for interior So what we have over here is that if you have from IS code or from your tables, you have the value of shrinkage strain for PCC. अगर आपके पास में PCC के लिए shrinkage strain का value है, तो आप आपके नॉर्मल RCC वाले मेंबर के लिए, जिसमें reinforcement जो है वो बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है सेक्शन के अंदर, वैसे सेक्शन के लिए आप लोग आपका shrinkage strain का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. नाउ अबाउट द लॉस, अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस कितना होने वाला है. ठीक है. सो अंडरस्टैंड, IS कोड recommends that for pre-tension members, the value of shrinkage strain is 0.0003. Okay, this is the value of shrinkage strain for pre-tension members, and for post-tension members, your shrinkage strain
is equals to 0.0002 divided by log to the base 10 t plus 2. Okay, so the value of loss in terms of strain, जैसे लास्ट टाइम भी हमने लॉस के अंदर बात किया था, तो क्या बात किया था कि हमारा इलास्टिक स्ट्रेन या इलास्टिक डिफॉर्मेशन का स्ट्रेन का वैल्यू कितना है, फिर स्ट्रेन से हमने उसको स्ट्रेस में कन्वर्ट किया था. अब यहाँ पे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ स्ट्रेन है, इसको स्ट्रेस में चाहिए, मीन्स जितना कंक्रीट में स्ट्रेन होगा उतना ही स्टील में स्ट्रेन होगा. दैट मीन्स फॉर प्री टेंशन मेंबर स्ट्रेन इन कंक्रीट इज 0.0003, तो स्ट्रेन इन स्टील इज आल्सो 0.0003. ओके, सेम जितना डिफॉर्मेशन कंक्रीट में होगा उतना ही डिफॉर्मेशन स्टील में होगा, तो जितना श्रिंकेज कंक्रीट में होगा उतना ही रिलैक्सेशन जो है वो स्टील के अंदर होगा. सो लॉस का वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है, सो लॉस is equals to elastic shrinkage strain. Okay, shrinkage strain multiplied by the modulus of elasticity of steel, that is equals to 0.0003 multiplied by जो भी रहेगा 2 into 10 raised to 5. Okay, 2 into 10 raised to 5 अगर आप यहाँ पे करेंगे तो this is going to come out to be 60 MPa. This is just an example. It is not true that every time the value is going to be this. It can be 2.1 into 10 raised to 5, तो 63 हो जाएगा. ओके, इस तरीके से इसका, बट बेसिकली द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द लॉस इज योर स्ट्रेन which you get from pre-tension or post-tension, whatever is the condition and all. Now why in post-tension there is some formula like this. Post-tension के अंदर जो shrinkage का value इन्होंने consider किया है, that is 0.0002 divided by log to the base 10 t plus 2. T is time in days. Okay, where t is equals to age in days. किसकी एज की बात हो रही है, कंक्रीट के स्टेज की एज की बात हो रही है. ओके, एंड दैट टू एट ट्रांसफर. सी वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर स्टेज. एक होता है सर्विस स्टेज, एक होता है ट्रांसफर स्टेज. ट्रांसफर स्टेज के अंदर प्री स्ट्रेस प्लस डेड लोड ही खाली एक्ट करता है. सर्विस के अंदर प्री स्ट्रेस प्लस डेड लोड प्लस लाइव लोड रहता है जो कि एक्ट करता है. ओके, so what is the value that you have to take? So T in days, 3 दिन, 7 दिन और 14 दिन अलग अलग डेज है कंक्रीट के. उसके हिसाब से जो हमारा कंक्रीट का स्ट्रेन का वैल्यू है, दैट इज 0.00029, 0.00021, 0.00017. Okay, these are few examples or few values that we have already calculated. This is given in your IS code. Okay, 1343/1982, your page number 16. Okay, and clause 5.2.4.2. okay, the clause is 5.2.4.2. over here this complete description, whatever I have written over here, this complete information is given. Okay, so in this shrinkage part, is there anything that you have not understood or anything you would like to ask? Have you understood everything? Okay, now Abhisar is asking the water cement ratio.
Ananya is saying about water cement ratio, and Abhisar is saying about size of pores of concrete. I think that they might have given me that what factors are affecting the shrinkage. Okay, so I hope that the factors which I have written over there must have answered your queries. Okay, and now we are going to talk about the creep in concrete. Okay, these are some of the major and important parts, and then after these the next part जो हमारे हैं वो बहुत comparatively बहुत ही easy है. ठीक है, so all these things also we are going to see. So for creep, there are two methods by which we can find out. Okay, one is ultimate creep strength method, and second is creep coefficient method. Okay, now try to understand. जो फर्स्ट मेथड है, मैं डिस्कस तो करेंगे हम लोग थियरी वगैरह, पहले हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं. ठीक है, बाय फर्स्ट मेथड जो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मेथड है, इसके अंदर आपको क्रीप स्ट्रेन का वैल्यू दिया हुआ होगा प्रॉब्लम के अंदर, या आप क्रीप स्ट्रेन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डिपेंडिंग ऑन सम गिवन वैल्यूज ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन एंड क्रीप स्ट्रेन. इलास्टिक स्ट्रेन क्रीप स्ट्रेन के वैल्यू से आप यहाँ पे क्रीप स्ट्रेन का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. वंस यू डिटरमाइन दैट, loss is equals to your creep strain multiplied by your modulus of elasticity of steel. This is the first method. Second method जो है, इसके अंदर creep coefficient की बात हो रही है, which is phi. ठीक है, ये phi का जो वैल्यू रहता है, ये 7 दिन 8 दिन इसके लिए अलग अलग रहता है, हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये कहाँ कौन से क्लॉज में दिया हुआ है, कैसे इसका डिस्कशन, वो सब हम लोग देखेंगे. ओके, अब यहाँ पे ये जो क्रीप कोएफिशिएंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो क्रीप कोएफिशिएंट है, इसको फॉर्मूले में कैसे यूज करेंगे, कैसे लॉस कैलकुलेट करेंगे. सो आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला एम एफ सी. ठीक है, सेम फॉर्मूले के अंदर फाई आ जाता है. ठीक है, एम फाई एफ सी. अब ये फाई का वैल्यू यहाँ पे कैसे आता है, मैं आपको बाद में आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि एम फाई एफ सी कैसे आता है. ओके, बट जस्ट रिमेंबर दैट दीज आर टू मेथड्स. द फर्स्ट मेथड इज लिंक्ड लाइक दिस, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मेथड, जिसके अंदर आपको डायरेक्टली क्रीप स्ट्रेन का वैल्यू पता होता है. जितना स्ट्रेन है मल्टीप्लाइड बाय द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विल गिव यू द स्ट्रेस अमाउंट, क्योंकि जितना कंक्रीट में स्ट्रेन है उतना ही स्टील के अंदर रिलैक्सेशन सेम. तो सेम चीज के हिसाब से हम लोग यहाँ पे लॉस को डिटरमाइन करते हैं. एंड जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला इस तरीके से क्रीप कोएफिशिएंट मेथड. क्रीप कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है फाई, दैट इज गिवन बाय योर अल्टीमेट strain divided by elastic strain for that particular concrete. उस पर्टिकुलर कंक्रीट के लिए अल्टीमेट स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन. और ये जो फॉर्मूला आप देखते हैं एम एफ सी का, दिस इज रिलेटेड टू इलास्टिक स्ट्रेन. सो ये फाई की जगह पे अगर मैं इसको इक्वेट करूँ अल्टीमेट स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन के रिलेशन से, सो आई कैन डिराइव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग दी फॉर्मूला फॉर दिस. ओके, सो इस तरीके से एम एफ सी आता है. इलास्टिक स्ट्रेन की वजह से जो वैल्यू आता है दैट इज एम एफ सी. फिर हम इस तरीके से लॉस को यहाँ पे लेके आते हैं. लॉस इज इक्वल्स टू ई सी यू इंटू दिस. तो ई सी यू की जगह पे हम लोग क्या रिफ्रेश करते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेन इज इक्वल्स टू 5 इंटू इलास्टिक स्ट्रेन. 5 इंटू इलास्टिक स्ट्रेन. 5 इंटू इलास्टिक स्ट्रेन क्या है हमारा, एम इंटू एफ सी. ओके, एम के अंदर ऑलरेडी हमारा ई एस बाई ई सी का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाता है. ओके, सो व्हाट इज क्रीप? Creep is the progressive inelastic strain in concrete. Creep is the progressive inelastic strain in concrete.
Creep is the progressive inelastic strain in concrete members due to sustained stress. Due to sustained stress. Creep is progressive inelastic. Inelastic मतलब प्लास्टिक, ओके. इनइलास्टिक मतलब नॉट द लीनियर स्ट्रेन. ये आपका नॉन लीनियर स्ट्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है. इनइलास्टिक, इनइलास्टिक स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट मेंबर्स ड्यू टू सस्टेन्ड स्ट्रेस. सस्टेन्ड स्ट्रेस मतलब कंटिन्यूसली उस कॉन्क्रीट के ऊपर P/A का वैल्यू जो है वो अप्लाइड है, P/Z का वैल्यू अप्लाइड है. ये कंटिन्यूसली लोड है उसके ऊपर. लाइव लोड भी एक बार आता है और जाता है, लेकिन जो आपका ये जो लोड है, प्री स्ट्रेसिंग लोड है, कंटिन्यूसली कंक्रीट के ऊपर एक्ट कर रहा है. बिकॉज ऑफ दैट सस्टेन्ड स्ट्रेस जो डिफॉर्मेशन कंक्रीट के अंदर आता है, ठीक है. इन इलास्टिक, इलास्टिक तो आपने डिस्कस कर लिया, दैट वाज द फर्स्ट लॉस. जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन था दैट वाज हैपनिंग इमीडिएटली. बट जो लॉन्ग टर्म में होता है, लॉन्ग टर्म में जाके जो लॉस होता है बिकॉज ऑफ द सस्टेन्ड स्ट्रेस, दैट इज द क्रीप. ओके, सो क्रीप will occur even at slightest loading. Okay, creep will occur slightest loading. मतलब क्रीप में ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी अमाउंट ऑफ लोड्स रहेंगे, बहुत ज्यादा लोड्स रहेंगे तो भी वहां पे, तो ही वहां पे जो है वो क्रीप आएगा. अगर थोड़े से भी लोड है और सस्टेन्ड है, कम अमाउंट का भी लोड है लेकिन सस्टेन्ड लोड है, तो वहां पे क्रीप ऑकर होता है. डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू. बट नाउ creep is due to viscoelastic nature of concrete. Creep is due to concrete. Concrete का जो nature है, okay, that nature is viscoelastic. Viscoelastic means what? That it is viscous as well as it is elastic in nature. Okay, viscous मतलब आपके डांबर या टार के जैसा गाढ़ा होना. जो डांबर या टार के जैसा गाढ़ा रहेगा तो वो विस्कस हो गया. तो विस्को इलास्टिक नेचर है जो कंक्रीट का जो मटेरियल है, दैट इज विस्को इलास्टिक इन नेचर. इसका मतलब क्या होता है कि आपका कंक्रीट का जो ये अमॉर्फस नेचर जो है हमारे पास में, विस्को इलास्टिक नेचर जो है, because of that the creep happens. So it is not necessary that there should be very huge amount of strain या ज़्यादा amount of load रहेगा तो ही creep occur करेगा. Slightest load के अंदर भी creep की possibility है. Then the effect of creep is similar to that of shrinkage. The effect of creep जो हमारा यहाँ पे लॉस की बात हो रही है, तो लॉस के अंदर द इफेक्ट ऑफ क्रीप इज सिमिलर टू व्हाट हैपेंस इन श्रिंकेज. जैसे श्रिंकेज के अंदर होता है वैसे ही होता है. तो इट इज सिमिलर टू हाउ इलास्टिकली डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर इज. ओके, सो इन केस ऑफ स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इट इज सिमिलर टू व्हाट हैपेंस विद श्रिंकेज. श्रिंकेज में भी वॉल्यूम कम होता है, क्रीप के अंदर भी वॉल्यूम कम होता है, डिफॉर्मेशन. फॉर लो स्ट्रेस क्रीप इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस. For low stress, creep is proportional to stress. However, it increases rapidly as the stress increases. Creep continues for a very long time. Means creep ऐसा नहीं है कि जैसे आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन था, इमीडिएटली आपने स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई किया और लॉस हो गया. Creep keeps on happening for a very long period of time. For very long period of time, कंक्रीट के अंदर creep होते रहता है, creep के वजह से डिफॉर्मेशन होते रहता है और लॉस जो है वो होते रहता है. सो
इसके लिए भी अगर आप देखेंगे तो कई बार आपको कृष्णा राजू के कैलकुलेशंस के अंदर या फिर आईएस कोड के अंदर जो क्लॉज है, क्लॉज ऑफ 5.2.5.2, इसके अंदर आप देखेंगे तो देर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग क्रीप। तो क्रीप क्या है, कई बार कैलकुलेशन में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लॉसेस होते हैं। तो शॉर्ट टर्म लॉसेस के अंदर आपको एक अलग वैल्यू दिया रहेगा क्रीप स्ट्रेन का, लॉन्ग टर्म के अंदर आपको एक अलग वैल्यू दिया रहेगा क्रीप का। सो दैट इज द वेरिएशन। सो you have to understand that creep happens in a certain different way than shrinkage. It happens similar to that, means हो रहा है सेम चीज, shrinkage of volume, वॉल्यूम में रिडक्शन, साइज में रिडक्शन, दिस इज द सेम वे। दोनों के अंदर स्ट्रेन का जो हैपनिंग है वो सेम है, लेकिन श्रिंकेज में इमीडिएटली होता है, तभी के तभी होता है, इमीडिएटली होता है, और क्रीप के अंदर इट हैपन्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओके, अंडर सस्टेन्ड लोडिंग। देन this all is given in clause 5.2.5.2 in the IS code. Okay, in the IS code, the value of creep coefficient, phi is given by age and the value of creep coefficient. So if it is 7 days, the value of creep coefficient is 2.2. If it is 28 days, the value of creep coefficient is 1.6. If it is 1 year, then the value of creep coefficient is 1.1. Okay, so depending on the age, the value of creep coefficient changes. So to calculate the loss, हम लोग लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैंने आपको बताया यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू, कि अगर क्रीप कोएफिशिएंट का वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है तो आप क्रीप कोएफिशिएंट मेथड यूज करेंगे। अगर क्रीप कोएफिशिएंट का वैल्यू नहीं दिया है और आपको क्रीप स्ट्रेन का वैल्यू दिया है तो क्रीप स्ट्रेन का वैल्यू यूज करेंगे। अगर क्रीप स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन दिया हुआ है तो आप फाई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, अगर आपको क्रीप स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन का वैल्यू, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन एंड अल्टीमेट इलास्टिक स्ट्रेन का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है तो आप उससे क्रीप कोएफिशिएंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और क्रीप कोएफिशिएंट मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, now fourth loss is loss due to creep in steel. Okay, now because of the creep in steel, this is also called relaxation of steel. ठीक है, this is also called relaxation of steel. Try to understand, एक स्टील का वायर है, ठीक है, ये स्टील के वायर के अंदर आप यहाँ पे लोड अप्लाई कर रहे हो। स्टील को तो ऐसे ही फील हो रहा है ना, कंक्रीट को भले ऐसा फील हो रहा है, जिस कंक्रीट के अंदर ये वायर है वो कंक्रीट को तो ऐसा फील हो रहा है कि कोई मुझे कंप्रेस कर रहा है, लेकिन स्टील के वायर को तो ऐसा फील हो रहा है ना कि वो टेंशन के अंदर है, ठीक है, कंटिन्यूसली टेंशन के अंदर है। तो ये सस्टेन्ड लोडिंग जैसे कंक्रीट के ऊपर अप्लाई हो रही है कंप्रेशन के फॉर्म में, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें क्रीप आता है और वो कंप्रेस हो जाता है। आर यू गेटिंग इट? जैसे कंक्रीट के अंदर एक सस्टेन्ड लोडिंग की वजह से, कंप्रेशन की वजह से क्रीप आता है और वो कंप्रेस हो जाता है, थोड़ा सा उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, दैट इज क्रीप बिकॉज ऑफ द सस्टेन्ड लोडिंग। सिमिलरली एक केबल के अंदर, एक वायर के अंदर जब आप कंटिन्यूसली लोड उसके अंदर टेंशन का अप्लाई करके रख रहे हैं तो कंटिन्यूस लोडिंग की वजह से क्या होगा कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम it will relax or the molecules will rearrange themselves. See, this is very important to understand. Molecules will try to rearrange themselves so as to be in the lowest energy state. The molecules will rearrange themselves so as to be at the lowest energy state. ये जब होता है, that means basically creep ये होता है, लेकिन जब ये होता है स्टील के अंदर, टेंशन के अंदर, that is called the relaxation और that is called the creep in steel. इसका मतलब क्या हुआ कि अभी उसमें जितना स्ट्रेन था, इलोंगेशन उतना ही है, लेकिन आप समझने की कोशिश करो कि जो ओरिजिनल लेंथ था ना, ओरिजिनल लेंथ वो 10 मीटर था, बराबर है, और आपका जो इलोंगेशन था वो 100 mm था।
तो आपका जो स्ट्रेन का वैल्यू था दैट वाज 100 डिवाइडेड बाय 10 into 10⁻3, ये आपका स्ट्रेन का वैल्यू था। अब समझने की कोशिश करो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो इलोंगेटेड पार्ट है ना, इलोंगेटेड पार्ट विच इज 10.1 मीटर, विच इज 10.1 मीटर। अब हमारा कंक्रीट क्या बोलता है कि मैंने इसको एक्सेप्ट, स्टील क्या बोलता है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं खुद 10.1 ही हूँ, मेरे मॉलिक्यूल्स अपने आप इस तरीके से अरेंज हो जा रहे हैं कि वो 10.1 समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस ट्रांजिशन के अंदर एक्चुअली इट विल नॉट हैपन दैट डायरेक्टली इट विल गो टू 10.1, बट सपोज दैट 10 mm भी इसने है ना एब्जॉर्ब कर लिया, 10 mm भी इसने मान लिया कि ये मेरे अंदर है, मॉलिक्यूल्स ने अरेंज कर लिया अपने आप को। तो अब आपका जो स्ट्रेन का वैल्यू है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। अब आपका स्ट्रेन का वैल्यू चेंज हो गया, ये आपका इलोंगेशन है, वो भी इलोंगेशन ये नहीं रहा 90 mm इलोंगेशन है, क्योंकि एक्चुअली तो ये लेंथ है और टोटल मेरे को 10.1 तक जाना है। एंड नाउ योर स्ट्रेन वैल्यू इज डिफरेंट। ओके, आपका पहले जो स्ट्रेन का वैल्यू था और आप स्ट्रेन का जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। ये कैसे आ गया डिफरेंस? दिस इज बिकॉज ऑफ द क्रीप इन द स्टील। स्टील ने मॉलिक्यूल अरेंजमेंट के थ्रू इस बात का एहसास अपने आप को करवा लिया कि यही मेरा नॉर्मल और स्टेबल स्टेट है, और उस तरफ पहुंचने के लिए जो उसने मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट किया, बिकॉज ऑफ दैट उसका थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया। एक्चुअली तो लेंथ आपने 100 mm खींच के बढ़ाया है, लेकिन इंटरनली उसने अपने आप के अंदर ये बात को ऐसा समझा है कि मेरा लेंथ 10 मीटर नहीं है, 10 मीटर 10 mm है, 10 mm बढ़ गया उसका। मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लिया सो एज टू बी एट द लोअर एनर्जी स्टेट। एक बात है समझने की। ओके, दिस कैन फर्दर भी डिस्कस टू वेरी हायर लेवल्स, लेकिन हम लोग अभी बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रीप हो क्या रहा है स्टील के अंदर। तो स्टील के एक सर्टेन पोर्शन ने इस बात को मान लिया है कि ठीक है, यही मेरा नॉर्मल स्टेट है, मुझे इसी में रहना है। सो इट हैज अरेंज्ड, मॉलिक्यूल्स हैव अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दैट। बिकॉज ऑफ दैट certain amount of stress is lost because there is change in the strain value. स्ट्रेन का वैल्यू चेंज होगा तो स्ट्रेस भी चेंज होगा, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से लिंक्ड है। सो बिकॉज ऑफ दिस inter arrangement of molecules and all, there is some loss. Now this loss is directly given in IS code 5%. Okay, this can be 5% to 10% depending on the different steel, grade of steel and all those things. So in your problems directly this value will be given to you कि 5% का लॉस हो गया, 10% का लॉस हो गया बस, ठीक है। The loss due to creep in steel is a long-term loss. Okay, so loss due to creep in steel is a long-term loss. So whenever somebody has told you to determine a short-term losses and long-term losses, you have to remember that loss due to creep in steel you have to consider in the long-term part. You cannot consider that in the short-term part. Now why it is necessary to calculate short-term losses and long-term losses? क्योंकि कुछ जो हमारे लॉसेस हैं दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ पी, के प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कितना है। अब अगर हम लोग ऐसा बोले कि आज भी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इतना है और एक साल बाद भी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इतना है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि पहले हम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कंसिडर करें जब हम लोग पहले शॉर्ट टर्म लॉसेस कंसिडर कर रहे हैं। फिर शॉर्ट टर्म लॉसेस की वजह से जितना स्ट्रेस का लॉस हो गया उतना हमें हमारे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को कम कर देना चाहिए। उसके बाद में उस कम हुए हुए प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को लेके हम लोग कैलकुलेट करते हैं लॉन्ग टर्म वाले लॉसेस को, तो हमारा आंसर और भी ज्यादा एक्यूरेट आता है। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म लॉसेस एंड लॉन्ग टर्म लॉसेस। बट आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी स्मॉल एक्सप्लेनेशन of loss due to creep in steel. Is it okay? Is it clear? Yes, sir. Okay. So now these four losses, loss due to shrinkage, loss due to elastic deformation, loss due to creep in concrete, loss due to creep in steel. These four losses are common losses for pre-stress, pre-tension concrete and post-tension concrete. So in both the concrete, these four losses are going to happen. Okay, and even if it is a pre-tension or post-tension, you have to calculate all these four losses. Okay, depending on whichever. अगर pre-stress रहेगा तो क्या लेना है, post-tension रहेगा तो क्या लेना है, shrinkage के अंदर कोई problem नहीं है, creep में कोई problem नहीं है, shrinkage के अंदर you have to see whether it is pre-tension or post-tension. Accordingly, you have to switch between the formulas. And elastic strain के अंदर you have to, elastic deformation के अंदर you have to see whether it is pre-tension and post-tension and how post-tensioning is done. ये कुछ चीजें, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ ओके है। Now coming back to the next loss.
loss due to friction. Now, there are further more properties that I have over here in my notes, which is thermal expansion, that how thermal expansion is a negative loss. Do you understand what I'm trying to say? There is thermal expansion of concrete, which can be caused as a negative loss. लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, IIT वाले लेवल की बात हो गई, तो ये हम लोग अभी ऐसे यूजुअली कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये IS कोड के अंदर मेंशन्ड है, यू कैन सी. ओके, so I will just for a brief I will tell you the coefficient of thermal expansion depends upon, means जो concrete का thermal expansion होता है that depends on nature of cement, nature of aggregate, cement content, relative humidity and size of the section. ये factors के ऊपर वो depend करता है. ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंक्रीट और वाटर का जो रिएक्शन होता है दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हीट जो आपके एनवायरनमेंट की कंक्रीट के ऊपर आती है, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो कंक्रीट इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ दिस पर्टिकुलर हीट एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज थर्मल एक्सपेंशन. तो ये थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्लॉज 5.2.6 मीन्स 5.5. ये 5.2.5.2 जो हमारा क्रीप का है उसके जस्ट बाद एक क्लॉज है, क्लॉज 5.2.6 स्पेसिफाइड द कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एग्रीगेट. कौन सा टाइप ऑफ एग्रीगेट है उसके बेसिस पे आपको कितना लेना चाहिए वो आपको वहाँ पे दिया हुआ है उसका वैल्यू. देन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कितना वर्केबिलिटी रहना चाहिए. The concrete mix should be so designed that it has adequate workability for placing concrete and its compaction. तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी कितना रहेगा इसके ऊपर पूरा एक टेबल है. वो सब चीज़ हम लोग अभी नहीं डिस्कस करते हैं बिकॉज आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सब चीज़ें हम लोग जब एक्चुअल में आपको करना रहेगा उस टाइम पे हम लोग चेक कर सकते हैं. ओके, now why high strength steel is used, that we have already discussed. strength requirement, कितना स्टील का स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट रहता है एंड ये नोट्स मैं आपके साथ में जो है आज शेयर कर दूंगा so that you will be in the position to understand all these different IS code provisions. Okay, what is permissible stress, what is initial pre-stressing, what is final pre-stressing, ये सब चीज़ें आप समझ पाएंगे. yeah? एक रिलैक्सेशन ऑफ स्टील से रिलेटेड भी बहुत अच्छा डायग्राम है एंड द विस्को इलास्टिक इफेक्ट. आई विल शेयर दैट आल्सो विथ यू. लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, लॉस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट, loss due to relaxation of steel, loss due to, let us have anchorage slip first because it is very simple to understand. Anchorage slip, so let us have anchorage slip first. Okay, so what do we understand by anchorage slip? In anchorage slip, what happens is that सपोज कि आपका ये बीम है, बीम के अंदर हमने यहाँ पे एक न्यूट्रल एक्सिस रखा, एक वायर लिया, वायर को एक साइड पे हमने ब्लॉक किया, दूसरे साइड पे जैक है, जैक के अंदर हम लोगों ने स्ट्रेस डाला, केबल को स्ट्रेच किया, केबल पूरी तरीके से स्ट्रेच हो गया. अब बस काटने की बारी है. तो काटने से पहले ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे एक एंकर लगाएंगे. ठीक है, एंकर लगाने के बाद में हम लोग इसको कट करेंगे. ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको कट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एंकर में मैंने जहाँ पे उसको टाइट किया, चाहे मैं कितना भी टाइट करूँ उस एंकर को उसके परफेक्ट पोजीशन तक टाइट वाइट करूँ काटने से पहले, लेकिन जैसे ही मैं इसको कट करता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंकर का जो प्लेट है, एंकर का जो ब्लॉक है, ये सब स्टील के बने हुए हैं, इनके अंदर भी इलास्टिसिटी है. जब तक मैं केबल को कट नहीं करता हूँ, ये पहला एंकर प्लेट हो गया और ये दूसरा एंकर प्लेट हो गया. ठीक है, तो पहला एंकर प्लेट तो ऑलरेडी पूरी तरीके से स्ट्रेच्ड है, उसमें सब कुछ सब बराबर है. लेकिन सेकेंड वाला जो एंकर प्लेट है, ये एंकर प्लेट के अंदर क्या होगा,
जैसे ही आप यहाँ पे केबल को कट करेंगे तो अचानक इस एंकर प्लेट को पूरा का पूरा स्ट्रेस आएगा आपका व्हाट वी कैन से प्री स्ट्रेसिंग केबल का। वो प्री स्ट्रेसिंग केबल जो एंकर का पूरा सिस्टम होता है उस सिस्टम को थोड़ा सा डिफॉर्म करेगा। उसके साथ में आपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स या हाथ से या जिस किसी भी मशीनरी के थ्रू उसको जितना भी आपने टाइट किया होगा, स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 1 mm 2 mm 4 mm 5 mm जो भी डिपेंड करता है, अलग अलग जो भी पैटर्न्स रहेंगे वो पैटर्न्स के हिसाब से जितना भी होगा उतना यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू समझो 5 mm वगैरह, ये एंकरेज स्लिप हो गया। एंकरेज पे से जो केबल है वो स्लिप हो गया। अगर एंकरेज पे से केबल स्लिप होगा इसका मतलब क्या होगा, अगर 5 mm स्लिप हो गया, टोटल लेंथ जो थी वो 10 मीटर थी, तो 10 मीटर के अंदर 5 mm स्लिप हो गया, इसका मतलब 5 डिवाइडेड बाय 10, इतना हमारा स्ट्रेन का लॉस हो गया। इतना स्ट्रेन, इतना रिलैक्स हो गया मेरा केबल, 5 mm रिलैक्स हो गया ना, तो वो रिलैक्सेशन को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय दी टोटल लेंथ, इतना स्ट्रेन का वैल्यू मेरा रिलैक्स हो गया। तो मेरा स्ट्रेस कितना गया, इतना मेरा लॉस होएगा, जितना यहाँ पे मेरा स्ट्रेन का मल्टीप्लाइड बाय माय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। डू यू अंडरस्टैंड दिस, लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप? यस ओके, दिस इज वेरी सिंपल। सो इसमें बहुत ज्यादा अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए, एंकरेज स्लिप। ओके, so during anchorage operations some slip of cable occurs in order to form friction wedges. This depends on the equipment used for pre-stressing. This depends on the equipment used for pre-stressing. The loss is a fixed length. The loss is a fixed length. Overall effect is less for longer span member. जितना ज्यादा आपका स्पैन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा स्पैन होगा, इतना इसका लॉस का इफेक्ट जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, टिपिकली एंकरेज स्लिप लॉस इज 5 mm और 6 mm, 5 mm या 6 mm का जो है आपका एंकरेज स्लिप का लॉस होता है। सिंस दिस इज अ शॉर्ट टर्म लॉस, इट कैन बी कंपनसेटेड ड्यूरिंग इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग। क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म लॉस है, इसको हम इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग के अंदर कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या बात हो गई इनिशियल में कंपनसेट करने की, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग प्री स्ट्रेस देते हैं तो हमें आईएस कोड के प्रोविजंस मतलब 0.8 जो हमारा रहता है, 0.8 टाइम्स ऑफ FPU, इतना ही दे सकते हैं हम लोग, इतना ही प्री स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं वो ज्यादा होती है, 0.85 0.9 तक की स्ट्रेचिंग होती है। इतनी स्ट्रेचिंग करने के बाद में हम लोग केबल को एंकर करके कट करते हैं। एंकर करके जब कट करते हैं तो फाइनली जो इनिशियल लॉसेस है, ठीक है, इनिशियल या इमीडिएट जो लॉस है, इमीडिएट जो लॉस है, इमीडिएट लॉस होने के बाद में हमें 0.8 इफेक्टिवली मिलता है। ठीक है, ये हमारा गोल होता है। तो ये जो हम लोग कंपनसेशन की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे कंपनसेशन हो रहा है। ओके, देन वन साइडेड प्री स्ट्रेसिंग मोर एफिशिएंट देन बोथ साइड्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं दोनों साइड पे जैक लगाऊं, यहाँ पे भी जैक है और यहाँ पे भी जैक है, जैक से केबल जो पूरी तरीके से स्ट्रेच्ड है, दोनों जगह पे मैं एंकरेज ब्लॉक लगाता हूँ और कट करता हूँ, तो जब मैं कट करूंगा तो यहाँ पे भी 5 mm का लॉस होगा, यहाँ पे भी 5 mm का लॉस होगा, टोटल जो है वो 10 mm का स्लिप हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड के ऊपर एक पहले से ही स्ट्रेस्ड या दबा हुआ नहीं है ना। तो जैसे ही आप दोनों साइड से केबल कट करेंगे, दोनों ही केबल्स जो है वो इस तरीके से एंकरेज स्लिप करेंगे। तो वन साइडेड से टू साइडेड बेटर है। सी, वन साइडेड और टू साइडेड आप कौन सा चूज करते हैं, ये सारी चीजें कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। हम लोग खाली लॉसेस को एक फैक्टर कंसिडर नहीं कर सकते। साइड के ऊपर की कंडीशन क्या है, आपके पास में केबल कौन से हैं, आपके पास में जैक्स कितने हैं, वो जैक्स टोटल कितना स्ट्रेन ले सकते हैं, कितना लोड ले सकते हैं, ये सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो कंपनी आपको प्री स्ट्रेसिंग करके दे रही है वो कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि उसके लिए क्या फेवरेबल है। तो ये सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो दीज थिंग्स यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड एंड रिमेंबर। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड टू अनदर लॉस। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉस है। इसके ऊपर थियरी में अगर हम लोग बात करने बैठे ना तो बहुत कुछ बातें की जा सकती है। ठीक है, बहुत डिस्कशंस किए जा सकते हैं। सिक्स्थ, every one of you can put into the chat box your attendance. Okay, chat box के अंदर आप अपना PNR नंबर और आपका जो नाम वगैरह आप लिखते हैं अटेंडेंस के लिए, उस तरीके से आप
चैट बॉक्स के अंदर अपना अटेंडेंस डाल सकते हैं. ओके, आई एम ऑल्सो टेकिंग यूजिंग दैट अटेंडेंस कलेक्टर, but also you can put it into the chat box. Now, loss due to friction is critical. Loss due to friction is critical for post-tension members. It occurs during pre-stressing. That means it's a short term loss. सी मैंने आपको पूरे 6 के 6 लॉसेस में हर बार ये बात बताई है कि कौन सा लॉन्ग टर्म लॉस है और कौन सा शॉर्ट टर्म लॉस है. आपको ये बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कौन सा लॉन्ग टर्म है और कौन सा शॉर्ट टर्म है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम्स ऐसे पूछे जाते हैं और एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो कैलकुलेशन इसी बेसिस पे होता है कौन सा शॉर्ट टर्म है. शॉर्ट टर्म को पहले ही कंपनसेट कर दिया जाता है ताकि वो उसी वक्त उसका इफेक्ट खत्म हो जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्री स्ट्रेसिंग का जो इफेक्ट है वो हमारे कंक्रीट के अंदर मिल सके. ठीक है, इवन दो हमें IS कोड ने लिमिट किया है कि हम ज़्यादा इतना नहीं दे सकते हैं, लेकिन फॉर दैट प्री स्ट्रेसिंग पार्ट जब अभी ट्रांसफर होने वाला है उस स्टेज के लिए हम लोग उसको उतना एक्स्ट्रा खींच के, और पता ही है कि जैसे ही केबल कट करेंगे सारे लॉस हो जाएंगे, तो हम लोग उतना एक्स्ट्रा प्रोवाइड करके करते हैं. ओके, सो नाउ ओवर हियर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल लॉस. दो तरीके से फ्रिक्शनल लॉस होता है. ठीक है, दोनों तरीके क्या है? ए, लॉस ड्यू टू कर्वेचर इफेक्ट. Loss due to curvature effect. Okay, that can also be said that नॉन स्ट्रेट केबल्स. आपका केबल जितना बेंड रहेगा, आपका केबल का जैसा कर्वेचर रहेगा, अगर लीनियरली वेरिंग है या कि स्ट्रेट लाइन है या कि पैराबोलिक है या कि सर्कुलर कर्व है, किस तरीके का उसका कर्वेचर है. ठीक है, मीन्स यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करिए कि हम एक सॉलिड की बात कर रहे हैं. सो देर आर टू प्लेन्स, देर इज अ XY प्लेन एंड देर इज एन XZ प्लेन. दो तरीके के प्लेन्स हैं जिसके अंदर वो केबल जो है इस तरीके से जाता है. तो केबल का जो कर्वेचर है वो कर्वेचर के इफेक्ट की यहाँ पे बात हो रही है. तो जितना उसका कर्वेचर रहेगा उस कर्वेचर के हिसाब से उसका लॉस रहेगा. दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फैक्टर विच इज अफेक्टिंग ओवर हियर द लॉस. सेकेंड फैक्टर इज लॉस ड्यू टू wobble effect. Due to local deviation. Local deviation from alignment. Okay, so ये दो फैक्टर्स हैं. ये दोनों फैक्टर्स कैसे होते हैं ना, हम लोग इसको भी समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखते हैं. ये पहला वाला, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया. एंड देन सपोज दैट दिस इज योर केबल पैराबोलिक इन नेचर. तो यहाँ पे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो है वो केबल के ऊपर एक्ट कर रहा है. केबल को क्या कर रहा है? बाहर की तरफ खींच रहा है. अगर आपने आपके फर्स्ट ईयर के अंदर मैकेनिक्स वगैरह पढ़ा होगा तो यू अंडरस्टैंड कि ये आपका यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है. तो आपका जो फ्रिक्शन है वो किस तरीके से एक्ट करेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन.
अब यहाँ पे मैं क्यों केबल की बात कर रहा हूँ और क्यों कंक्रीट की बात नहीं कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं लॉस जो है वो केबल में डिटरमाइन करना चाहता हूँ। मैं जो लॉस है वो केबल में डिटरमाइन करना चाहता हूँ, मैं कंक्रीट में लॉस नहीं डिटरमाइन करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे लिए जो मटेरियल ऑफ रेफरेंस है वो स्टील है, इसलिए मैंने स्टील के अंदर पी के जो दोनों वैल्यूज आप देखेंगे वो बाहर के साइड रखे हैं। तो अगर इस तरीके से है तो मेरा जो फ्रिक्शन है वो कैसे एक्ट करेगा, जब तक मैं सेंटर तक नहीं पहुंचता हूँ, दैट मीन्स सेंटर से लेके राइट हैंड साइड का पोर्शन राइट हैंड साइड में बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, सेंटर से जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड में बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो द फ्रिक्शन इज एक्टिंग लाइक दिस, ठीक है, friction is acting like this. Is this clear to you? Do you understand that the friction, what is the direction of frictional force? It is opposite to the direction of the pre-stressing force. At every point it is opposite to the direction of the pre-stressing force. Is it clear to you? Do you understand this? Yes, sir. Okay, so at any section you can consider, suppose मैं यहाँ पे एक section लेता हूँ, ठीक है, ये सेक्शन जो है यहाँ से x डिस्टेंस के ऊपर है, तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा इसका वैल्यू, इसको हम लोग बोलेंगे px। ये px हमेशा p से कम होगा, ये जो px का वैल्यू है ये हमेशा p से कम होगा। अब ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ये एग्जांपल में जैकिंग एट बोथ एंड्स है, ये एग्जांपल में जैकिंग एट बोथ एंड्स है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको एक एंकर लगा देता हूँ, अब जो कंप्लीट डायरेक्शन है केबल का वो स्टार्ट से एंड तक यहाँ पे रहेगा, तो पूरे के पूरे जो फोर्सेस हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इस तरीके से एक्ट करेंगे। दैट मीन्स अभी सेंटर से यहाँ पे हाफ लॉस और यहाँ पे हाफ लॉस हो रहा था पहले केस में, सेकंड केस के अंदर सेंटर से लॉस नहीं होगा, जहाँ पे एंकर किया है ना वहां से लेके दूसरे एंड तक लॉस होगा, दैट मीन्स डबल लॉस होगा। तो ये हमारा फैक्टर है ड्यू टू कर्वेचर इफेक्ट, दिस इज ड्यू टू कर्वेचर इफेक्ट। अब हम लोग एक सेकंड फैक्टर की बात करेंगे, ड्यू टू वॉबल इफेक्ट। अब यही सेम बीम का मैं टॉप व्यू बनाता हूँ, ठीक है, यही सेम बीम का मैं एक टॉप व्यू बनाता हूँ। अंडरस्टैंड दैट दिस व्हाट आई एम मेकिंग ओवर हियर इज द टॉप व्यू। इसमें मैं न्यूट्रल एक्सिस वगैरह नहीं बनाऊंगा, ये आपका डक्ट है। अगर ये डक्ट को मैं टॉप से देखूंगा तो इस तरीके से डक्ट है, ये डक्ट के अंदर आपका केबल है। अब यहाँ फ्रंट से जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को केबल ऐसा पैराबोलिक दिख रहा है, लेकिन अगर मैं टॉप से देखता हूँ तो हो सकता है कि जो मेरा केबल है वो ऐसा होके जाएगा। आर यू गेटिंग इट? दिस इज द डेविएशन जो टॉप व्यू के अंदर आपको केबल दिखेगा। ये मैंने थोड़ा ज्यादा ही बता दिया, इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डेविएशन जो आप टॉप से देखोगे, जब आप टॉप से देखोगे तो केबल 100% स्ट्रेट नहीं रहेगा। इट इज पॉसिबल कि आपने उसको जब अंदर से डाला है तो बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द कॉन्क्रीट, बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द केबल, इट इज पॉसिबल दैट बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन उसको हिलने नहीं दे रहा है, देखो कितना टाइट रहेगा केबल, कितना ज्यादा स्ट्रेस रहेगा उसके अंदर, ऐसे पोजीशन के अंदर वो इस तरीके से वॉबली रहेगा। ये जो वॉबल वर्ड आ रहा है ना, वॉबलनेस, ये कहाँ से, ये आपको टॉप व्यू से दिखेगा। टॉप व्यू से दिखेगा इस तरीके से केबल जो है इतना ज्यादा भी नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा कर्वेचर रहता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं रहती, थोड़ा सा कर्वेचर रहता है। जब कर्वेचर रहता है तो केबल ऑब्वियसली सेंटर में मूव करना चाहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन मूव नहीं कर पा रहा है। केबल जो है वो सेंटर में मूव करना चाहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन मूव नहीं कर पा रहा है। सो ये जो फ्रिक्शन हो रहा है, ये जो रेजिस्टेंस हो रहा है, ये केबल के अंदर एक लॉस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द वॉबल इफेक्ट, ठीक है। वॉबल कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ओके। सो फ्रिक्शन कॉजेस केबल टेंशन टू बिकम नॉन यूनिफॉर्म अलोंग इट्स लेंथ। फ्रिक्शन क्या करता है कि आपका जो केबल के अंदर का जो टेंशन है उसको नॉन यूनिफॉर्म कर देता है, मतलब हर जगह पे सेम वैल्यू नहीं रहती है, एंड्स पे अलग रहती है, सेंटर में अलग रहती है, इस तरीके से उसका वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो जाता है, ओके। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट दैट? अगर वो जैसे मैंने आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखाया था एक्स के डिस्टेंस के ऊपर, तो अगर उसके ऊपर मुझे डिटरमाइन करना है कि कितना वैल्यू है, px is equals to p naught multiplied by e raised to minus mu alpha plus kx. This is the formula for determining the amount of pre-stress at any section. किसी भी सेक्शन में अगर हमें फ्रिक्शन का इफेक्ट हटा के कितना वैल्यू है अगर वो डिटरमाइन करना है तो इस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। इन दिस p naught is pre-stressing force at jacking end. Pre-stressing force at jacking end. Mu is coefficient of friction.
between steel and concrete. Then there is alpha. Alpha is cumulative angle. Cumulative angle in radians up to x. x मतलब जिस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ. अगर मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ तो सपोर्ट से सेंटर, सपोर्ट से सेंटर. अगर मैं किसी एंड की बात कर रहा हूँ तो एक एंड से लेके दूसरे एंड तक कितना टोटल कर्वेचर के अंदर चेंज आता है, उस कर्वेचर के चेंज का टोटल एंगल आपको निकालना है. अगर आप कहीं बीच में बात कर रहे हो, कहीं पे भी 1/4 सेक्शन पे, 1/5 सेक्शन पे, कहीं पे भी बात कर रहे हो, तो जिस एंड से जैकिंग हो रही है उस एंड से, मीन्स जिस जैक पे P0 का वैल्यू है, उस पॉइंट से लेके उस क्रॉस सेक्शन तक आपको डिफरेंस इन एंगल डिटरमाइन करना है. ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. And then there is lastly one more thing, mu alpha plus kx. So mu is coefficient of friction, alpha is that, k is friction coefficient for wobble effect. Friction coefficient for wobble effect. k मतलब kappa. ओके, सो ये जो हम लोग डेल्टा वगैरह बोलते हैं, इस तरीके से k इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग kappa. ओके, ये आपके IS 1343 के कुछ रिकमेंडेशंस हैं. IS 1343 recommendations. म्यू का जो वैल्यू है दैट इज 0.55 बिटवीन स्टील एंड स्मूथ कॉन्क्रीट. बिटवीन स्टील एंड स्मूथ कॉन्क्रीट. Zero 0.35 फॉर स्टील एंड स्टील. ठीक है, इस तरीके से आपको IS कोड में बहुत सारे वैल्यूज मिल जाएंगे. K का जो वैल्यू है दैट इज 0.15 पर 100 मीटर इन नॉर्मल कंडीशन. K का वैल्यू अगर नहीं दिया है पेपर के अंदर या क्वेश्चन के अंदर और आपको चाहिए तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स. K का वैल्यू है 0.15 per 100 meter in normal condition and 1.5 per 100 meter for thin wall duct. अगर thin wall duct है तो आपको 1.5 per 100 meter लेना है वैल्यू. और अगर आपका नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल ब्लॉक सेक्शन है, कम्प्लीटली RCC एंड ऑल, इस तरीके का सेक्शन है तो 0.15 per 100 meter in normal condition. Okay, so this is it. Now there are few things that I would like to tell you about this particular topic, that next week at the same time around this is आपका आज 3 तारीख है, तो 10 तारीख को हमारा एक लेक्चर रहेगा. ओके, 10 तारीख का जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू प्री स्ट्रेसिंग. और प्री स्ट्रेसिंग के हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स एंड ऑल दोस थिंग्स देखेंगे. एंड देन विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन दी व्हाट वी कैन से, then we can start discussing on the dynamics part. Okay, जो dynamics वाला मॉड्यूल है वो मॉड्यूल के अंदर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आपका जो असाइनमेंट है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल विल बी शेयर्ड टुडे एंड यू विल हैव अ टाइमलाइन टिल नेक्स्ट वीक 10th
to submit that particular assignment. There is going to be a single assignment on this particular module that will contain a lot of problems related to analysis of section as well as analysis of losses. लॉस के भी प्रॉब्लम रहेंगे और आपके नॉर्मल एनालिसिस के भी प्रॉब्लम रहेंगे. ये दोनों चीज़ें रहेगी. हम लोग जब 10 तारीख को मिलेंगे तब इन प्रॉब्लम के अंदर आपको कोई डिफिकल्टी आया है या आपको कोई चीज़ पूछना है तो अकॉर्डिंगली आप पूछ सकते हैं. हम लोग कुछ डिस्कशंस कर सकते हैं. ओके. जो कंप्लीट नोट्स है मेरे पास में रिलेटेड टू दिस प्री स्ट्रेस, इसका मैं पीडीएफ बना के आपके गूगल क्लासरूम के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा. सो दैट ओवर देयर इन नोट्स के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं. कृष्णा राजू का बुक भी आप लोगों के पास में होगा पीडीएफ फॉर्मेट एंड ऑल, या आपके फ्रेंड्स के पास में यू कैन शेयर पीडीएफ्स सो दैट कि आप उसमें से भी कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है. सो टुडे एज पर the point of view of losses as well as from the point of view of analysis, I am concluding this particular module. Now related to the internal assessment examination, most probably your internal assessment examination is going to be on 13th, 14th and 15th. Okay, 13th, 14th and 15th of March. So till 13th, 14th and 15th of March we have successfully concluded this module. So this module is going to be the part of your II1. Okay, and the other module which Zair Khansar is teaching you related to the RCC design. So including these two modules, there is going to be questions which are going to be asked in your internal assessment examination. I hope you all know that how your internal assessment examination works and what are the questions that can be asked. Okay, so the format and everything is going to remain same. Okay, is there any difficulty, any question or anything that you would like to ask me regarding this particular topic or this module or anything else? Anything? Nothing? Okay. Thank you for patiently listening for this particular session. I hope you have understood everything, and also I will be by tonight I will be sharing the first assignment related to my topic one. Okay, this particular module. Okay, thank you everyone. Thank you for listening to this. Any difficulty you have in solving that particular tutorial, you can anytime put it into the chat box in the WhatsApp chat or anywhere, and I will be able to solve any of your queries. Okay. So related to numericals, I did not wanted to waste my time in numericals because numericals are very simple, and even by looking at the numericals you will be able to understand them. So that's why I'm not solving numericals over here on this online session. It is important to cover up the theory so that you understand what we are actually dealing with. Okay, so you'll solve numericals also if possible with that time, but I will share the tutorial with you so that you can start solving the numericals, as well as the notes will be uploaded on the Google Classroom. Okay, for your reference purposes. Thank you everyone.